So once again, the name of the chapter is birth, है ना? And now we are going to start this chapter, and I again would like to give you a quick recap of this chapter. So this chapter is about, a couple, mainly it is actually about a couple who is expecting what? A couple who is expecting a baby. ठीक है? And because there are certain complications in the delivery, so they have taken the help of a doctor. They have taken the help of a doctor, and this doctor is a new one. He's a new doctor, and when he goes there and he sees that there are complications. ठीक है? So when the birth happens, it's a stillbirth. The baby is not moving, it's not breathing. ठीक है साहब? So then though he was new, but he did not lose his mind, and he did not lose his patience, he did not lose the control of his mind, and he actually uses his past experiences and tries to bring the baby back to life. In doing so, he does a real good hard work, and ultimately the life comes back in the body of the baby, and he feels the pulse, the throbbing of the life entering into the body of the baby. And he feels very happy about that, and he feels as if he has actually done something meaningful at this point. Understood? Everybody? Yes, sir. Okay, so this is actually the whole gist of the story, the summary of the story. Now, let's start. So it's written by A.J. Cronin. I hope my screen is viewable. Sir. Yes, Yes, sir. sir. So here the text says, in this excerpt from The Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school. तो ये The Citadel से छोटा सा एक excerpt लिया गया है, एक part लिया गया है, और इसमें एंड्रयू मैनसन न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, एंड्रयू मैनसन नाम का बंदा है जो नया मेडिकल स्कूल से बाहर निकला है, पढ़ाई करके निकला है, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page. और उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करी है अभी नई, और अभी असिस्टेंट है डॉक्टर एडवर्ड पेज के पास. ठीक है? कहां पर ये लोग हैं, अब किस जगह पर हैं? इन द स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लैनली. ब्लैनली नाम का टाउन है, ठीक है? उसमें कोई लोकेलिटी होगी वेल्श, वहां पर ये लोग रहते हैं. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस आ रहा है, returning from a disappointing evening. Why disappointing? Any idea?
Yes, maybe they had a quarrel or they had some disagreement on any particular thing, any particular topic. So they both are returning, and it's a disappointing evening with for this boy and for this man Andrew Manson, and his girlfriend's name is Christine. He is met by Joe Morgan. तो रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है जो मॉर्गन से. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. तो जो और उसकी बीवी जो कि तकरीबन 20 साल से मैरिड हैं, वो लोग 20 साल से they have been married for 20 years, but they never had any child. So now they are expecting their first child after 20 years of their marriage. So if you can imagine how happy they're currently, how happy and how expecting their situation must be. They must be expecting this child in a real anxious way. Yes, are you guys there? Yes, sir. Yes, sir. 20 years after their marriage, till their marriage, they did not have any child. Now they are expecting their first child. So let's continue with the text. Though it was nearly midnight when Andrew reached Barringover, he found Joe Morgan waiting for him. जब एंड्रयू से उसने पहले मिला होगा और मिलने के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह लिया रहा होगा. सो जब एंड्रयू बैरिंगओवर पहुंचा तो ही फाउंड जो मॉर्गन. इट्स नियरली मिडनाइट एंड जो मॉर्गन इज वेटिंग फॉर हिम. सो जो मॉर्गन कौन है? ऊपर हमने पढ़ा था जो एंड हिज वाइफ. तो जो मॉर्गन वो बंदा है जो और उसकी वाइफ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो जो वो बंदा है वो इंतजार कर रहा था एंड्रयू मैनसन का. वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस. और वो बड़ी परेशानी से अप एंड डाउन, तो यानी परेशानी में, घबराहट में या इंतजार में वो आगे पीछे चल रहा है. और वो सर्जरी और एंट्रेंस ऑफ द हाउस के बीच में वहां चल रहा है और बहुत परेशानी से उसका इंतजार करता हुआ उसको मिला. एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ. अच्छा यस, एक और चीज, अगर ऊपर देखिए आप, वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लैनली, स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लैनली. तो ये जो टाउन है, यहाँ पर के लोग जो हैं वो माइनिंग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो जो टाउन है वहां पर माइनिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन. माइनिंग समझते हैं ना, खुदाई करके मिनरल्स वगैरह निकालना, है ना, कोल मिनरल्स अलग अलग जो हैं, तो उसकी जो माइनिंग करके निकाली जाती है. तो उस टाउन में माइनिंग बहुत होती है, तो ये माइनिंग टाउन है. ठीक है. सो ये बंदा भी ड्रिलर है और ये इसका फेस जो है, जो मॉर्गन को देखते ही, सॉरी एंड्रयू मैनसन को देखते ही इसके फेस पे रिलीफ दिख गया. डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू. I've been back. आई के बाद कुछ मिसिंग लग रहा है. I've been back and forward here this last hour. मतलब मैं यहाँ आ करके कई बार जा चुका हूँ पिछले 1 घंटे में. The missus wants you before time too. यानी his missus wants, yeah, that's what he means, that his missus, she needs him, as he is a doctor, and she needs him because it's a before time birth. Yes, it's an early birth. मतलब
the time which would have been due for the birth, this is the lady has probably started expecting it before time. There must have been a given date, but then she has started expecting the birth to be before time. So it's an urgent situation and she needs the doctor. Understood? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So Andrew abruptly recalled the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. He went into the house for his bag. Then together they set out for number 12, Blena Terrace. तो एंड्रयू ने थोड़ा सा रुक करके रिकॉल किया कि मुझे क्या लेना है, क्या छोड़ना है, या मेरे पास क्या अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या नहीं है, अपना थोड़ा सा कंटेम्पलेशन करा और उसके बाद he told him the Morgan to wait. Then he went into the house. वो घर के अंदर गया, अपना वो बैग लेकर के आया, डॉक्टर्स बैग, जिसमें उसके सारे इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे. Then together they set out for number 12, Blena Terrace. So Blena Terrace, number 12 is the address of Mr. Joe Morgan. Yes. So this is the address of his client Joe Morgan. और वहां के लिए ये लोग निकल पड़े. The night air was cool and deep with quite mystery. और ये जो रात की हवा थी वो बड़ी सर्द है और बड़ी गहरी सी है. ऐसा जैसे लग रहा है कि कुछ कह रही हो कि आने वाला कोई तूफान सा है, ऐसा लग रहा है. Usually so perspective, Andrew now felt dull and listless. और एंड्रू को थोड़ा सा डल महसूस हो रहा है. He had no premonition that this night call would prove unusual. और उसको ये जरा सा भी अंदाजा नहीं है. प्रीमोनिशन, पहले से आभास हो जाना, प्रीमोनिशन. तो उसको जरा सा भी पहले से ये आभास नहीं है, ये अंदाजा नहीं है कि आने वाली ये जो रात है ये कितनी अलग तरह की अनयूजुअल प्रूव होगी उसके लिए. Still less that it would influence his whole future in Blandly. और इतना इस हद तक अनयूजुअल प्रूफ होगी कि वो उसके आने वाली पूरी जिंदगी को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस कर देगी. Influence. हाँ, यस, यस, बोलिए बोलिए. हाँ जी, बोलिए. हेलो. Yes, sir. कोई कुछ बोल रहा था, बोल दीजिए जल्दी से. बोल रहे नहीं बोल रहे, जल्दी बोलो. कोई कुछ बोल रहा था फिर चुप हो गया. उसकी आने वाली लाइफ बहुत अनयूजुअल, आने वाली जो रात है वो बहुत अनयूजुअल होने वाली थी और ये रात उसकी जिंदगी पर हमेशा हमेश के लिए एक छाप छोड़ने वाली थी. ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. Okay, so the two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. दोनों मर्द चलते हुए साइलेंटली उस घर के दरवाजे पर पहुंच गए और फिर जो ड्रू अप शॉर्ट यानी वो पीछे ही रुक गया. जो कौन है? जो उनका क्लाइंट है, मिस्टर जो मॉर्गन ना. तो वो पीछे ही रुक गया. He drew up short, वो अंदर नहीं गया. I'll not come in, he said. I'll
not come in, he said, and his voice showed signs of strain. उसने कहा मैं अंदर नहीं आऊंगा, और उसकी आवाज से लग रहा है कि वो परेशान है. But man, I know you'll do good, you'll do well for us. लेकिन मैं जानता हूं कि तुम हम लोगों के लिए अच्छा ही करोगे. उसने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम हम लोगों के लिए अच्छा ही करोगे. यानी उसने अपना विश्वास जताया उसके ऊपर और उससे कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम अंदर जाओ, मैं बस ये भरोसा करता हूं कि तुम हमारे लिए अच्छे साबित होगे. ठीक है. हाँ ना बोलते रहा करो, पता लगे कि तुम लोग मौजूद हो. Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब तो थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है. किसी कोने वोने में चले जाओ धूप में लेकर के, वहां बैठे हो चुपचाप. और बोलो बोलो यार, जिंदगी दिखाओ. ओके. सो इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम. अब ये जो मॉर्गन का घर का थोड़ा सा नक्शा खींच रहा है. इनसाइड, अंदर जाने पर, अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम. एक पतली सी सीढ़ी ऊपर की तरफ एक छोटे से बेडरूम में लेकर के जाती है. क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड. ये घर क्लीन है, साफ सुथरा है, लेकिन बहुत सामान नहीं है वहां पर. जरूरत के जो सामान होने चाहिए वो सारे बहुत ज्यादा भरे नहीं हैं, लेकिन साफ सुथरा घर है. एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प. और वहां पर एक ऑयल वाला लैंप जल रहा है. यानी लाइट वगैरह नहीं है, या उनके घर में लाइट नहीं होगी, जो भी वजह है, तो ऑयल लैंप जल रहा है वहां पर. हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर. और यहां पर मिसेस मॉर्गन्स मदर, यानी ये कौन हो गई? जल्दी बताइए. मिसेस मॉर्गन्स मदर कौन हो गई ये? Mother-in-law of Joe Morgan. यस एग्जैक्टली. यानी मिसेस मॉर्गन यानी जो मॉर्गन की पत्नी, जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनकी मदर हैं ये, और जो मॉर्गन की सास हैं ये. ठीक है. हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर. और वो कैसी हैं? अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमन ऑफ नियरली 70. सफेद सफेद बाल हैं उनके, ग्रे बाल हैं और लंबी सी हैं. अबाउट 70 years of age. एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ. और एक छोटी सी मगर हेल्दी सी एल्डरली मिडवाइफ है. मिडवाइफ तो सभी जानते होंगे ना. नर्स टाइप की चीज, जो पहले घरों में आती थी और छोटा मोटा ट्रीटमेंट करती थी और नॉर्मल डिलीवरीज भी कराती थी. तो एल्डरली Yes. मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट. तो वो मिडवाइफ वहां पेशेंट के बराबर में खड़ी है, वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम. और वो एंड्रू को ऑब्जर्व कर रही है, उसके एक्सप्रेशन को देख रही है, जैसे जैसे वो कमरे के अंदर इधर उधर घूम रहा. ठीक है. Yes, sir. Okay. Let me make you a cup of tea, doctor. Let me make you a cup of tea, doctor, said the farmer quickly after a few moments. Said the farmer. यहाँ farmer कौन हो जाएगा? Farmer का मतलब क्या है? That midwife. midwife, ध्यान दीजिए, farmer का मतलब क्या होता है? सचिन तेंदुलकर was a former Indian cricket captain. First one. फर्स्ट वन या पहले था. फॉर्मर पहले आने वाला. तो Yes, sir. इस पिछले पैराग्राफ में पहले कौन आया था? किसकी बात हुई थी? मिसेस मॉर्गन्स मदर.
और स्टाउट वुमन एल्डरली मिडवाइफ तो लेटर है ना, वो तो बाद में आई है, लेटर। क्यों? पैराग्राफ में पहले बात मिसेस मॉर्गन्स मदर की हुई है और बाद में एल्डरली मिडवाइफ की हुई। तो फॉर्मर कौन हो जाएगा? Mrs. Morgan's mother. Mrs. Yes. Morgan's mother. Mr. Morgan. एग्जैक्टली, मिसेस मॉर्गन्स मदर। तो फॉर्मर ने क्विकली कहा, यानी मिसेस मॉर्गन्स मदर ने, यानी जो उनकी सास हैं, उन्होंने कहा कि लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी। एंड्रू स्माइल्ड फेंटली। एंड्रू ने धीरे से मुस्कुरा दिया। ही सॉ द ओल्ड वुमन, वाइज इन एक्सपीरियंस, realized that there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. कौन समझाएगा इस छोटे से पैराग्राफ का मतलब? Andrew smiled faintly. He saw the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, and she was afraid he would leave the case, saying he would return later. Yes? जल्दी बताइए। मैं बताऊं? नहीं बताएंगे आप लोग? ओके, सो एंड्रू मुस्कुरा दिया और उसने ये ऑब्जर्व कर लिया कि जो ओल्ड वुमन है, यानी ये जो मिसेस मॉर्गन है, वो क्यों मुस्कुरा दिया? वो चाय की बात पे मुस्कुराया है और वो उसने ये भांप लिया कि ये जो ओल्ड वुमन है, ये एक्सपीरियंस में बहुत वाइज हैं, समझदार हैं एक्सपीरियंस की वजह से, और उनको ये एहसास हो गया होगा कि अभी कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। तो इस वजह से उनको ये डर रहा होगा कि कहीं डॉक्टर साहब चले न जाएं ये कह के कि वो दोबारा आएंगे। तो इसलिए उन्होंने उनको उलझाने के लिए या वहां रोकने के लिए चाय का ऑफर दिया। समझ गए? Yes, sir. Yes. ओके, डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। यानी परेशान मत होइए, आई विल नॉट रन अवे, मैं भाग के नहीं जाऊंगा कहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम। फिर वो उनके साथ नीचे चला गया किचन में और चाय पिया उसने जो उन्होंने दिया था उसको। Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. और बहुत थक गया है वो, और उसको ये पता है कि वो अगर घर भी चला जाएगा तो भी 1 घंटे की भी नींद उसको नहीं मिल पाएगी। He knew too that the case here would demand all his attention. और उसको ये भी अंदाजा था कि यहाँ पर जो केस उसके सामने आया है वो उसका सारा अटेंशन डिमांड कर सकता है, इसलिए भी वो वहां से जाना नहीं चाहता था। A queer lethargy of spirit came upon him. अब वो थोड़ा सा लेथार्जिक हो रहा है, यानी थका थका सा हो रहा है, और he decided to remain until everything was over. और उसने ये डिसाइड किया कि वो वहीं रुकेगा जब तक कि सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती। An hour later he went upstairs. 1 घंटे के बाद वो ऊपर गया। Noted the progress, फिर से क्रॉस चेक किया, एग्जामिन करा। Came down once more, फिर नीचे आ गया। Sat by the kitchen fire, और किचन फायर के साथ बैठ गया। It was still, बहुत खामोश था वहां पर सब कुछ, except for the rustle of a cinder in the grate. वहां पर क्या है?
बताइए साहब। वहां पर सब बहुत खामोश, सारा सब कुछ चल रहा है, एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल। वहां पर सिर्फ पेड़ पौधों के, पेड़ पत्तियों के खड़कने की आवाजें आ रही हैं और दीवार पे लटकी हुई जो घड़ी है उसके टिक टॉक की आवाज सुनाई दे रही है, बाकी सब बहुत खामोश है। नो देयर वॉज अनदर साउंड, लेकिन नहीं, एक साउंड और था वहां पर। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। वहां पर और कैसी आवाज थी? मॉर्गन, मिस्टर मॉर्गन के पैरों के, कदमों के चलने की आवाज आ रही है, जो स्ट्रीट में, बाहर गली में अकेले इधर उधर टहल रहे हैं परेशानी से। द ओल्ड वुमन ऑपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस। और वो बूढ़ी औरत, वो उसके ऑपोजिट में ब्लैक कलर का ड्रेस पहने हुए बैठी हुई हैं, क्वाइट मोशनलेस, बिना हिले डुले। हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज। उनकी आंखें खुली हुई हैं, प्रोबिंग, प्रोबिंग मतलब सवाल पूछने वाले अंदाज में या ऑब्जर्व करने वाले अंदाज में। नेवर लीविंग हिज फेस। किसका? नेवर लीविंग हिज, किसका? फेस। जल्दी बताइए। Jew. नेवर लिविंग एंड्रूज फेस ना। डॉक्टर साहब हैं, वो वहां बैठे हुए हैं, तो भाई वो उस लेडी की मदर हैं, उनको परेशानी है। वो एंड्रू को ऑब्जर्व कर रही हैं और उसका चेहरा लगातार देखे जा रही हैं, ताकि उनको कुछ उसके चेहरे से ही पता लगे कि अभी कितना टाइम है, कितना नहीं है, केस का क्या कॉम्प्लिकेशन है, परेशानी है कि सही है ना। तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हिज थॉट्स वर हेवी मडल्ड। और अब वो बैठा हुआ है चुपचाप और सोच रहा है। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। और वो क्या सोच रहा है? जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो स्टेशन पर जो सारा इंसिडेंट हुआ है, वो उसको सोच रहा है। He thought of Bramwell foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly। और अब क्या है कि वो अलग अलग तरह के लोगों के बारे में सोच रहा है, जिनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ जो है वो हैप्पी नहीं गई है। तो अब वो उन्हीं के बारे में सोच रहा है और अपने बारे में भी, कि वो जिस लेडी को लव करता है वो उससे मैरिज करेगा तो सक्सेसफुल होगी, नहीं होगी, क्या होगा। तो वही सब सोच रहा है वो वहां बैठा हुआ। The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly। वो अभी भी उसको परेशान कर रही है, वो सारा वाकया जो है। He thought of Bramwell, ब्रैमवेल नाम के किसी बंदे के बारे में सोच रहा है। Foolishly devoted to a woman, जो कि बहुत ज्यादा डिवोटेड है किसी दूसरी औरत, मतलब वो उसकी अपनी बीवी होगी या गर्लफ्रेंड होगी ब्रैमवेल की, तो वो उस पर बहुत डिवोटेड है, एकदम बेवकूफों की तरह से। Who deceived him, जिसने उसको बेवकूफ बना दिया है, एकदम बिना किसी दया के उसको बहुत अच्छे से बेवकूफ बना दिया है। या फिर वो और सोच रहा है किसके बारे में? ऑफ एडवर्ड पेज, बाउंड टू द श्रूविश ब्लॉडवेन ऑफ डेनी, लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। और एडवर्ड पेज है जो कि क्या है? वो श्रूविश ब्लॉडवेन, बाउंड टू द श्रूविश ब्लॉडवेन ऑफ डेनी, लिविंग अनहैप्पीली। वो अपनी वाइफ के श्रूइड नेचर की वजह से वो अब अनहैप्पीली रहता है, अकेले, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स। और उसकी अकल ये कहती है कि ये सारी मैरिजेस जो है वो बिल्कुल फेलियर चली जाती हैं। इट वॉज अ कंक्लूजन विच in his present state made him wince। और
ये कंक्लूजन पे आते आते उसको हल्की सी झपकी सी आ जाती है. He wished to consider marriage as an idyllic state. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. लेकिन ये सब सोचने के दौरान भी वो अगर मैरिज की बात सोचता है तो उसको क्रिस्टीन के अलावा किसी और का चेहरा नजर नहीं आता. Her eyes shining towards him admitted no other conclusion. It was the conflict between his level, doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused. तो दो जबकि क्रिस्टीन के अलावा किसी और का चेहरा उसकी नजर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डाउटिंग दिमाग में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है और जिसकी वजह से वो सुकून नहीं पा रहा है और कंफ्यूज है. He let his chin sink upon his chest और उसकी चिन जानते हैं ना, ठुड्डी जिसको कहते हैं, the bone right below your jaw. तो उसका सर जो है टिक गया है उसके चेस्ट के ऊपर. Stretched out his legs और उसने अपने पैर भी फैला दिए हैं. Started brooding into the fire. He remained like this so long and his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. तो वो वहां बैठा क्रिस्टीन के बारे में ही सोच रहा है, आग को देख रहा है घूर के, और तभी वो अचानक एक्टिव हो जाता है जैसे ही वो ओल्ड वुमन जो उसके ऑपोजिट में बैठी हैं उससे कुछ पूछती हैं. Her meditation had pursued a different course. और अब वो जग गया है. Susan said not to give her the chloroform. Susan ने कहा है कि उसको क्लोरोफॉर्म मत देना. It would harm the baby. She is awful set upon this child. She is awful set upon this child. Dr. Bash. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in low tone, "Oh, we all are, I fancy." क्या मतलब हुआ यहां पर? तो जो मदर हैं वो कह रही हैं कि सूजन ने कहा है कि उसको क्लोरोफॉर्म न दिया जाए क्योंकि वो बेबी के लिए हार्मफुल होगा. Understood? Why chloroform? Why not chloroform? Then what? Come on, fast. बताइए भाई. Yes, class. जल्दी बताइए. Anybody there? Yes. Is anybody there? No? Hello? Are you guys there? Yes, sir. Yes. Okay. All right. So why chloroform? You must be knowing कि दो तरीके होते हैं ना डिलीवरी के दौरान बेहोश करके डिलीवरी कराने के लिए. दो तरीके होते हैं. वन इज गिविंग द क्लोरोफॉर्म एंड द सेकेंड थिंग इज यूजिंग एन इंजेक्शन, है ना, एंड दैट इंजेक्शन इज इंजेक्टेड इनटू द बैकबोन. यस, आर यू गाइज अवेयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो जो लेडी है वो ये कह करके पहले ही उसने कह दिया था अपनी मदर से, सूजन ने, कि मुझे क्लोरोफॉर्म न दिया जाए
because that would probably harm the child. है ना? That will not be good for the child. तो इसलिए क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए, इंजेक्शन से ही मुझे बेहोश करने की कोशिश की जाए या सुन करने का कोशिश किया जाए. Though that injection is really painful, it is injected into the backbone, and it's really a careful job to be done, because if even a slightest mistake might cost you your spinal or your backbone injury. Yes, but she agreed not, or she agreed only for the injection and not for the chloroform. Clear? Yes, sir. Okay. So I think time is up. Let's stop it here and we'll continue tomorrow, na? ठीक है? Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. thank you. Yep, bye bye. Take care.